نے کہا کہ میں اس عہد کو، میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا. I will not abolish my covenant or alter what my lips have uttered. خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا. جو وعدہ میں نے تیرے ساتھ کیا ہے اس کو میں نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا. جو کچھ میں نے اپنے منہ سے کہہ دیا ہے اور اس بات سے نہ بدلوں گا. اور پچھلے اتوار ہم نے سیکھا تھا کہ خداوند نے اپنے بندہ حزقیل کی معرفت یہ کہا کہ nevertheless I will remember my covenant with you in the days of your youth and I will establish an everlasting covenant with you. میں اپنے اس عہد کو جو میں نے تیری جوانی کے ایام میں تیرے ساتھ باندھا یاد رکھوں گا اور ہمیشہ کا عہد تیرے ساتھ باندھوں گا. خداوند نے اپنے بندہ حزقیل کی معرفت بنی اسرائیل قوم سے کہا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے بندہ داؤد کی معرفت داؤد کے ساتھ اور بنی اسرائیل قوم سے کہا کہ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا. جو کچھ میں نے عہد کر لیا اس کو بھی نہیں توڑوں گا. جو کچھ میں اپنے منہ سے کہہ دیا ہے اس سے بھی نہیں بدلوں گا. I will not abolish my covenant or alter what my lips have uttered. اور پھر جب ہم گنتی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں نمبرز چیپٹر 23 نمبرز چیپٹر 23 ورس 19 نمبر چیپٹر 23 ورس 19 لکھا ہے خدا انسان نہیں جو جھوٹ بولے نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. کیا جو کچھ اس نے کہا ہے وہ نہ کرے اور جو کچھ اس نے فرمایا ہے کیا اسے پورا نہ کرے. اور God is not human that he should lie, or not a human being that he should change his mind. Does he speak and not act? Does he promise or not fulfill? خدا انسان نہیں کہ جو جھوٹ بولے. وہ آدم زاد نہیں کہ وہ اپنا ارادہ بدلے. اور جو کچھ خدا نے کہہ دیا ہے اور وہ سب کچھ کرے گا. جو کچھ اس نے کہہ دیا ہے وہ سب کچھ کرے گا. کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور نہ اپنے منہ کی بات سے بدلوں گا. بلکہ جو عہد میں نے تیری جوانی کے ایام میں تیرے ساتھ باندھا ہے تیرے ساتھ یاد رکھوں گا. بلکہ نیا عہد تیرے ساتھ باندھا. اور جب ہم
यशाया की किताब का मुताला करते हैं, इज़ाया चैप्टर 55 वर्स 10 to 12। यहां पर हम देखें खुदा का कितना खूबसूरत वादा है। खुदा ये कहते हैं यशाया नबी की मार्फत, पढ़िए जरा यशाया 55 बाब और उसकी 10वीं 11वीं आयत, 12वीं आयत भी पढ़। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोईदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा वो बेइंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुअस्सर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात और कितना कंफर्म वादा। और खुदावंद खुदा ने यशाया नबी की मार्फत कहा, as the rain and the snow come down from heaven and do not return it without watering the earth and making bud and flourish, so that is healthy seed for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है, जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है, किसको? अपने कलाम को, अपने खादम को, और वो काम पूरा करेगा। मेरा कलाम जो आसमान से नाज़िल होता है और वो फिर वापस नहीं जाता, बेतासीर वापस नहीं जाता। क्योंकि लिखा, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है, वो फिर वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी रुवाइंदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। और उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा बेअंजाम मेरे पास ना आएगा। हालेलुया। मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा वो बेतासीर बेअंजाम वापस नहीं आएगा, बल्कि जिस काम के लिए वो मेरे मुंह से निकला है वो उसे पूरा। मैं अपने उस अहद को जो मैंने तेरी जवानी के साथ बांधा, जवानी के दिनों में तेरे साथ बांधा, याद रखूंगा। मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और ना अपने मुंह की बात से बदलूंगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, लेकिन हमें ईमान में मजबूत होना है। किस में मजबूत होना है? ईमान में मजबूत होना है। ये ईमान रखना है कि खुदा जो है वो जो कुछ उसने कहा है और वो करेगा। और 12वीं आयत में खुदा का वादा बड़ा खूबसूरत वादा। Isaiah chapter 55 verse 12।
लिखा है, for you shall go out with joy and be led out with peace, and the mountain and the hill shall break forth into singing before you, and the tree of the land shall clap their hands. Hallelujah. इसको उर्दू में पढ़ दीजिए जरा. Hallelujah. क्योंकि तुम खुशी से निकलोगे और सलामती के साथ रवाना किए जाओगे। पहाड़ और टीले तुम्हारे सामने नगमा परदाज होंगे और मैदान के सब दरख्त ताल देंगे। तुम खुशी से निकलोगे, सलामती से रवाना किए जाओगे। पहाड़ और टीले तुम्हारे सामने नगमा परदाज होंगे और जमीन के सब दरख्त तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। हालेलुया। कितना बड़ा वादा खुदावंद का कि जिस काम के लिए तुम निकलोगे, जहां कहीं भी तुम जाओगे, तुम खुशी से निकलोगे, सलामती के साथ रवाना किए जाओगे। Now let's see how the Lord has. पहाड़ और टीले Now. तुम्हारे सामने नगमा परदाज होंगे। हाले कितनी बड़ी बात। यानी पहाड़ों से मुराद ये है कि वो लोग जो आपके मुखालिफ होंगे, वो लोग जो आपके मुबारक को खिलाफ होंगे, और वो भी फिर खुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे, वो भी शादमानी करने पर मजबूर हो जाएंगे, और वो भी आपके लिए खुशी करेंगे, वो भी आपके लिए खुश होंगे। मुखालफों को भी वो खुश करते। और क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब हम अमसाल की किताब का मुताला करते हैं तो अमसाल की किताब में लिखा है, प्रोवर्ब्स में लिखा है कि जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। हालेलुया। वो उसके दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। हालेलुया। पहाड़ और टीले नगमा सराई करेंगे, जो आपके मुखालिफ हैं लोग, वो भी आपके लिए नगमा सराई करेंगे। हालेलुया। गॉड इज जीसस। और जब हम ईसाया 55 बाब उसकी 13वीं आयत का मुताला करते हैं, जरा पढ़िए 13वीं आयत। कांटों की जगह सनोबर निकलेगा और झाड़ी के बदले आस का दरख्त होगा, और ये खुदावंद के लिए नाम और अब्दी निशान होगा हालेलुया। जो कभी मुनक़ता ना होगा। Hallelujah. And instead of the thorn shall come up the separate cypress tree, and instead of the barrier shall come up the myrtle tree. It shall to the name for the Lord, for an everlasting sign. Hallelujah. It shall not be cut off. कितनी बड़ी बात है। और कांटों की जगह तेरे लिए सनोबर निकलेगा। हालेलुया। झाड़ियों की जगह तेरे सामने क्या निकलेगा? मारिए पढ़िए 13वीं आयत। आस का दरख्त होगा। आस का दरख्त होगा। आस का दरख्त होगा, उम्मीद का दरख्त होगा, खुशी और शादमानी का दरख्त होगा आपके सामने। आपकी जिंदगी में फूल ही फूल होंगे। हालेलुया। झाड़ियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि झाड़ी जो है वो क्या करती है? झाड़ी दबा देती है। झाड़ी क्या करती है? दबाती है। और आपने पढ़ा होगा यसूसी ने बीज बोने वाले की मिसाल दी, और यसूसी ने कहा कि एक बीज बोने वाला निकला और कुछ राह के किनारे गिरा, और कुछ पथरीली जमीन में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उनको
दबा लिया, उनको बढ़ने ना दिया। और ईसाया की मार्फत खुदा ये कहता है कि तेरे सामने से झाड़ियों की जगह आस का दरख्त This is Hallelujah. reunion. और झाड़ियां खत्म, उम्मीदें पूरी हो जाए। इसलिए तो खुदा ने कहा है कि मैं अपने उस अहद को जो मैंने तेरी जवानी के अयाम में तेरे साथ बांधा याद रखूंगा। मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और ना अपने मुंह की बात को बदलूंगा। खुदा इंसान नहीं कि जो झूठ बोले, ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। हम इंसान होते हुए अपना इरादा बदल देते You हैं। need your salt. हाँ? बहुत सी बातों में अपने इरादे बदलते हैं इंसान होते हुए, लेकिन खुदा नहीं ऐसा करता। बहुत बातों में हमारे मुंह से झूठ निकलता है, लेकिन खुदा झूठ नहीं बोलता। और खुदा जो कहता है वो करता है। और फिर जब हम यर्मिया की किताब का मुताला करते हैं तो खुदा ने यर्मिया से कहा। आइए देखिए जरमाया चैप्टर 1 वर्स 12। जरमाया चैप्टर 1 वर्स 12। मैं आप ही निकाला करूँगा अंग्रेजी में। World War III happened. Jeremiah chapter But 1 verse 12. when और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। The Lord said to me, you have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. Hallelujah. खुदा ने यर्मिया से कहा कि तूने खूब देखा है। खुदा ने यर्मिया से फरमाया, ब्लेसी आप भी इस आयत को पढ़ दीजिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी वाचा को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हालेलुया। कितनी बड़ी बात। खुदा ने यर्मिया से कहा कि तूने खूब देखा है, तूने खूब देखा है, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। और खुदा जो कलाम कर देते हैं, जो बात अपने मुंह से कह देते हैं और फिर उसका वो पीछा करता है। खुदा जो अपने मुंह से कह देता है और फिर उसका वो पीछा करता है। और जरूर है कि हम जो अपने मुंह से कह देते हैं उसका हम भी पीछा करने वाले हों, उसको बात को देखें कैसे पूरी होती है। और मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी बातें हैं आप किसी को नहीं बताना चाहते, कुछ ऐसी बातें किसी आप किसी को नहीं बताना चाहते, अपने भेद किसी को नहीं बताना चाहते, लेकिन अगर गलती से बता भी देते हैं तो उनका पीछा भी करें, ताकि वो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल ना हो सके जो आपने बताया। और मुंह से बहुत सी बातें निकल जाती हैं, लेकिन निकालने के बाद सो ना जाए। जैसे एक शख्स अपना भेद बताकर सो गया था। कौन था वो? कौन था?
जिसने अपना भेद बता दिया फिर वो सो गया। चलो सैमसून से पूछा तेरे बाल कैसे बढ़ते हैं, तेरे बाल बढ़ने से कैसे रुक सकते हैं। तो वो भेद किसी को बताने वाला नहीं था, लेकिन सैमसून ने बता दिया। फिर क्या हुआ, सो, यानी कि सो ना जाए। भेद बताया जा सकता है, ना तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन बता दिया है तो सो ना जाए, लापरवाह ना हो जाए। इसको डालना है। और मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने एक भेद की बात थी, मम्मी जल्दी और मेकअप चाहिए। वो किसी को बता दी और वो बात मेरे अगेंस्ट खड़ी हो गई। और मुझे मैं जो चर्च चला रहा था आजम बस्ती में, और उस चर्च के ताल्लुक से मुझे पूछा किसी ने कैसे मिला आपको, कैसे दिए, कैसे 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 कैसे। तो मैंने भी एक एक बात बता दी, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। वो जनाब वही उसी जगह पर वो पहुंच गए, वो चर्च मुझसे छीनने के लिए। यानी कि भेद जो है वो बताया जा सकता है। आपसे मिस्टेक हो सकती है, बता सकते हैं, लेकिन उस पे सोना। मैं बता तो चुका था, लेकिन बेखबर ना रहा। बाद में मुझे महसूस भी हुआ कि मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन बता तो चुका, लेकिन और यही बात है कि खुदा जो है वो तो हमेशा अपने मुंह से अच्छी बात ही हमारे लिए निकालता है, अच्छी बात ही निकालता है। लेकिन खुदा उनका फिक्र करता है, उन बातों का पीछा करता है, उनको पूरा करने के लिए बेदार रहता है। और यानी कि जो कुछ आप कहते हैं और उस पर सो ना जाएं, बल्कि उस पर बेदार रहें। और खुदा ने यर्मिया की मार्फत कहा कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। और फिर God's word has the power within itself, its own fulfillment. Whatever God has promised will come to pass. His word cannot fail. खुदा का कलाम फेल नहीं हो सकता, बल्कि खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। आखिर में एक बात और सीख के हम बंद करते हैं। अगर हमारी जिंदगियों में खुदा का कलाम पूरा नहीं होता तो उसका क्यों नहीं होता, आइए देखें। 2 Corinthians chapter 13 verse 5 to 6. जी पढ़िए। 2 Corinthians chapter 13
verse 5 to 6. तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मालूम कर दोगे कि हम तो नामकबूल नहीं, और हम खुदा से दुआ करते हैं कि तुम कुछ बदी ना करो, ना इस वास्ते कि हम मकबूल मालूम हों, बल्कि इस वास्ते कि तुम नेकी करो, चाहे नामकबूल ही ठहरे। क्योंकि हम हक के बरखिलाफ कुछ नहीं कर सकते, मगर सिर्फ हक के लिए कर सकते हैं। जब हम कमजोर हैं, आमीन आमीन आमीन। तो पानी वो पानी first 2 Corinthians chapter 13 verse 5 to 6. Examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourself. Do you not realize that Jesus Christ in you? Unless of course you fail the test. But I trust that you will know that we are not disqualified. Hallelujah. Praise the Lord. अपने आप को आजमाओ, अपने आप को जांचो कि हम ईमान पर हैं या कि नहीं, और तुम इससे जान लोगे। क्या जान लोगे? कि हम में मसीह है और हम मसीह में हैं। और तुम ये भी जान लोगे कि हम अब फेल नहीं होंगे। हालेलुया। अब हम फेल नहीं होंगे, अपने तमाम मकासद में पूरे निकलेंगे। हमारे तमाम मकासद जो है पूरे होंगे, लेकिन जब आप ईमान में मजबूत होंगे, जब आप ईमान में मजबूत होंगे। ब्लेसी आप इस आयत को पढ़ दीजिए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम वाचा में निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। Praise the Lord. Hallelujah. तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। Hallelujah. Praise the Lord.